The Kopok curve indicator is a momentum-based indicator invented by Edwin Kopok in the year 1965. The signals generated by this curve are actually very simple and helps in identifying long-term buying opportunities when the indicator moves from negative to positive territory. The Kopok curve is 10 period weighted moving average of what? 10 period weighted moving average of 14 period rate of change plus 11 period rate of change. ऐसे हमने 20 पीरियड रेट ऑफ चेंज लिया तो कॉपर कर्व क्या होता है 10 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज ऑफ 14 पीरियड आरओसी प्लस 11 पीरियड आरओसी that is the maths of this copper curve calculation, right? Using monthly data, this indicator will not trigger many buy signals because it's a long term. Generally copper curve को long term के trend के measure करने के लिए लिया जाता है, right? Long term averages. कल मेरे को विनती जी ने सराफ जी ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म को मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर लेंगे. कॉपर कर्व इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इंडिकेटर. ये बहुत कम सिग्नल्स देता है लेकिन जब देते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देता है, लॉन्ग टर्म सिग्नल्स देता है. अगर मंथली चार्ट में इसको प्लॉट करेंगे, इफ यू प्लॉट इट इन अ मंथली चार्ट इंस्टेड ऑफ डेली चार्ट, इट विल गिव अ लॉन्ग टर्म का सिग्नल्स. You can also plot in daily charts. That also there also it is useful, but generally people use it for a long term thing. You can use it for short term also. A buy signal triggers with a cross into the positive territory, while a sell signal triggers with a cross into negative territory. There is a center zone, zero line, and above which there is a positive territory, and below which is seen as a negative area. A buy signal is generated with a crossover into a positive territory, while a sell signal is generated when it is enters into a negative territory. So let's see the copper curve in the TradingView platform. Again, I am teaching very simple things, concept student, not too complex. So indicators में जाइए, copper curve को खोलिए, copper curve. Okay. In copper curve, there's a zero line. Let's plot the zero line here. This is the zero line. The tableau में default length is 10 days, so that's fine, or we have to change it also, or this is done automatically? No, in the copper curve, you keep it 10. 10 is fine for copper curve. This is a zero line. Now it's again very simple. It is slower than the last rate of change indicator, but it is also a very good indicator. So whenever it crosses above the zero line, we'll take a buy position. Like it crosses the zero line here, we'll take a buy position on this candle, this one candle, 13 September candle, and we can write this momentum. You can see you can write the momentum till the time it doesn't break the 10 line, zero line. 10 लाइन को क्रॉस 10 लाइन को जब ब्रेक करेगा, it will give a correction. When it will break above the zero line again, then it will give a buy opportunity. When it will break the 10 line, it will give a sell opportunity. Similarly as ROC, ROC is the faster indicator, and rate of change and copper curve is a long term indicator. अगर आप इसको डेली की जगह मंथली में करेंगे, 1 month, then you will see a better indicator. You will see lesser moves, but you will see a very strong indicator. I'll show you in the case of ITC. Since it's a long-term indicator, you can see
Just a minute. As long as it above the zero line, the trend will be strong, right? Only when it goes below the zero line, you can see यहाँ पे zero line नीचे गया, तो sideways से correction चालू होगी. As long as it above the zero line, the trend will be upwards. When it breaks the zero line, you can see यहाँ पे zero line को break किया है, यहाँ पे कॉपर कर्व ने zero line को break किया है, तो there is a sharp down move from here till here. Means from 275 से लेकर यहाँ तक आपको sharp down move मिल गया मार्च में 143 का. It's a very big down move. 242, 170. Yes, tell me. Tell me, ma'am. Just joined. ये आप कौन सा बता रहे हैं? थोड़ा सा ये चार्ट में बता दीजिए ना. This is the copper curve. ITC का चार्ट खोलिए, कॉपर कर्व प्लॉट कीजिए इंडिकेटर्स में जाके. Sir, how do you spell it? COPPOCK. COPPOCK. Copper curve. One more basic question. How do we draw this line? Because on my chart, on This zero, there is line no line. that I've drawn zero line. Yeah, this. How do we draw this zero? Go to the left side of the panel. Setting. On the Then- panel setting, right? Second one, you can see horizontal line. अच्छा, okay, on extreme left, okay. Then आप जीरो के आसपास कहीं पे भी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए. It's actually it significant नहीं है, लेकिन it gives a clear idea. You can focus better while drawing this. Otherwise वो जीरो लाइन बहुत छोटा, बहुत महीन होता है. बहुत ही faint है, दिखती नहीं है. Yeah. Yeah. Have you done it? Viniti ji, have you done? Yes. आपने कर लिया? कॉपर कर्व आपने प्लॉट कर लिया? Okay. Now I've taken monthly chart. मंथली चार्ट में लॉन्ग टर्म आपको चार्ट मिलेगा. आप पूछ रहे थे विनती जी की लॉन्ग टर्म में कैसे मोमेंटम मालूम पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म चार्ट लिए. As long as the copper curve is above the zero line, the uptrend is continuing. जहां भी जीरो लाइन को ब्रेक कर रहा है, uptrend is breaking. You can see यहाँ पे भी जीरो लाइन को क्रॉस ब्रेक किया तो करेक्शन आ गई. करेक्शन was from 276 to 140 in March. This is the monthly chart I'm taking. This is to March 20. So copper curve ने 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5, 8 साल में 6 बार इंडिकेशन दिया आईटीसी की लॉन्ग टर्म में कब एंट्री करना है, लॉन्ग टर्म में कब एग्जिट करना है. लॉन्ग टर्म जो फॉलो करते हैं वो कॉपर कर्व को बहुत अच्छे से यूज करते हैं. दे फॉलो कॉपर कर्व रिलीजियसली बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर. शॉर्ट टर्म में भी यूज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा बड़ा ट्रेंड मिलता है. मतलब कॉपर कर्व अगर पार हो गया मतलब डेफिनेटली 100% वो बेरिश है और उससे बड़ा मूवमेंट मिलेगा, बड़ा डाउनसाइड मिलेगा या बड़ा अपसाइड मिलेगा. देखिए अपसाइड भी कितना बड़ा है. 200 रुपए से कॉपर कर्व जब यहाँ पे जीरो से ऊपर क्रॉस किया है तो इट वाज अराउंड 206 एंड नाउ इट इज 265. सो लॉन्ग टर्म के चार्ट्स में आईटीसी इज बुलिश. मतलब ये ट्रेंड कम से कम 6-7 महीना 8 महीना चलेगी, राइट. तो कॉपर कर्व इज अबव जीरो and not so much overbought. Copper curve is clear to everybody? Very simple it was. It's a long-term indicator. सबको clear है copper curve? सर हाँ बोलिए. इसमें ड्यूरिंग ये फरवरी अक्टूबर कौन सा है 18 एक से ये नवंबर 18 और 18 से जनवरी फरवरी 19 तक ये जो कर्व है ये अप ट्रेंड में जा रहा है, बट जो कैंडल्स है वो
अक्टूबर 2018 से फरवरी 19 तक। अक्टूबर अक्टूबर 2018 से अक्टूबर आगे थोड़ा, या हाँ इस तरफ यहाँ पे ये जो लाइन है अप ट्रेंड शो कर रहा है ये कॉपक वाला, बट ऊपर में जो अपने ये कैंडल्स और है वो उधर वो डाउन ट्रेंड नहीं है रेट्स। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, जब भी आपको इसमें 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 सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको अभी बताना भूल गया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी अगेन। आप इसमें क्या करिए, -25 और +25 पे दो दो लाइंस ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, एक करिए +25 पे और एक करिए -25 पे। यहाँ पे -25 पे लाइन। अब आप देखेंगे 0 से लेकर 25 तक कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ना, कोई बेसिक ट्रेंड नहीं, साइडवेज चल रहा है। लेकिन जब 25 क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 201 पे, तब यहाँ पे आप देखिए प्राइस राइज चालू होगा। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 25 है, कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है, 200 से लेकर 210 तक गया। लेकिन 200 तब 25 को क्रॉस किया, तब देखिए इतना बड़ा नहीं है, यहाँ से लेकर ओके, यहाँ तक 150 तो पॉइंट का। अभी ये 25 है, नियर अबाउट 40 है, तो 0 ये to 25 के और बीच भी में long क्या, जा सकता 0 to 25 के बीच में क्या होता है कि बहुत बार फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन 25 से अबव, 25 से अबव आपको क्लियर सिग्नल मिलेगा। इसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं है, ये 100 200 300 कितना भी जा सकता है, as long as it is moving upwards and not breaking the zero line, it will be in an uptrend। जितना ऊपर रहेगा उतना ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा, फटाफट स्पीड से भागेगा। जितना ऊपर कम रहेगा उतना धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक जीरो लाइन ब्रेक नहीं करती है। मतलब -25, जब तक -25 ब्रेक नहीं करता है तब तक ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा, है। राइट। ये हमेशा मंथली देखना है या वीकली डेली भी नहीं, देख अगर आपको सकते लॉन्ग हैं टर्म जैसे? चार्ट्स देखने हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड, आपको परचेज करना है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डेली चार्ट्स में भी देख सकते हैं। आप इसको तो डेली जब में, ये डेली चार्ट, जब ये डेली बना में था, इसका जब कॉन्सेप्ट बना था, तब ये डेली चार्ट्स के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बना था, बट पीपल यूज इट फॉर डेली ऑल्सो, सर राइट। सॉरी फॉर द नॉइज, बस एक क्या चीज ये पूछना था कि सितंबर 21 में इट हैज क्रॉस 25 डेज का लाइन, बट ऑलमोस्ट Feb 20 तक ये सेम प्राइस ही चल रहा था, उसके हाँ, बाद ये आपको किया तो ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ ये वैसे ही चल रहा था प्राइस। कहाँ पे बोल रहे हो? सितंबर 21 मंथली चार्ट में सर, मैं मंथली चार्ट में था। मंथली में देख रहा हूँ मैं, सितंबर 21 बोल रहे हो ना? यस यस, हाँ नहीं ये बोलिए। सर ये वीकली चार्ट है सर, मैं मंथली देख रहा था। अच्छा, मंथली चार्ट, हाँ बोलिए। सितंबर 21 में अराउंड 2015 के आसपास प्राइस था। हाँ हाँ सितंबर 21 सर, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। और 25 को क्रॉस जहाँ पे किया सर। हाँ यहाँ हाँ, पे ठीक है ठीक है। ये, हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्राइस था ऑलमोस्ट फेब तक यही प्राइस चला साइडवेज में। हाँ हाँ, उसके बाद मूवमेंट है, मैंने 6 मंथ बाद, लॉन्ग टर्म में भी 6 मंथ के बाद मूवमेंट दिया। यस यस तो मतलब इज इट करेक्ट एकदम, मतलब मैं वैसे यस पूछ रहा हूँ। यस यस, सितंबर 21 में जो आप देख रहे हैं, हाँ 25 क्रॉस किया है, यहाँ पे 25 क्रॉस किया है, 220 कुछ, 220 कुछ पे ना, 220 के आसपास क्रॉस किए, तो इसके बाद ही इतना बड़ा ट्रेंड बना है। उसके पहले 210 200 ऊपर नीचे क्रॉस किया था हम, आपकी बात सही है, जीरो लाइन के बाद, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड 40-60 पॉइंट का 25 के क्रॉस करने के बाद ही बना। फेब तक भी ये प्राइस 220 ही था, अगर आप फेब में यस देखोगे। यस यस, साइडवेज ऊपर नीचे चल रहा था, हाँ है ना। बट अभी क्या हो रहा है कि 25 लाइन क्रॉस करने के बाद, सितंबर के बाद से ये वन वे रैली दिखा रहा ओके। है, नीचे रिट्रीट नहीं खींचा था, रेंज बाउंड नहीं है,
दैट्स माय Okay. पॉइंट कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर ढूंढना है, आपको बाइंग लेना है कोई स्टॉक में, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कॉपर कर्व काम आएगा। ओके सर, और अभी तक हमने लॉन्ग टर्म चार्ट का सिर्फ यही एक देखा ना मेनली? हाँ, ये देखा है और मूविंग एवरेज देखा है हमने। कौन सा था? मूविंग एवरेजेस। हाँ वो ओके, मूविंग एवरेज। यस, यू कैन यूज फिबोनाची आल्सो इन लॉन्ग टर्म। ओके आपको बस मंथली वीकली चेंज करना है, monthly, weekly, daily change करना है as per your preference. Most of the indicators, but this indicator when this was formed, it was formed for long-term study only. The formula Okay. was devised for long-term chart. तो इशिमोकू और भी हम लोग अगर लॉन्ग टर्म देखना चाहे तो मंथली Yes, चार्ट you कर can, you can, you can, you can. Okay. आपको बस वो time frame change करना पड़ेगा. You can study that only. Okay? Everybody clear on Kopok curve? I am moving to the last concept now. Third concept. We have done the rate of change. सर and वैसे अभी yeah. अभी आईटीसी में एंटर करना चाहिए आफ्टर फ्राइडेज मूव या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? As long as the trend is ये- upward, you can enter, no problem. You are late, but you can still enter. जब तक वो trend break नहीं करता है और आपका stop loss set नहीं करता है, you can keep on riding it or you can buy fresh. मैंने तो रिसेंटली एग्जिट कर लिया था क्योंकि ये साइडवेज में इतना मूव नहीं दिखा रहा था अभी। हाँ, लास्ट लेकिन अब काफी लोगों ने एग्जिट किया है, कुछ तो आईटीसी शॉर्ट कवरिंग के कारण भी पड़ा है कि बहुत लोग शॉर्ट करते हैं आईटीसी को मंथली एक्सपायरी में, और बहुत कॉल राइटिंग होती है। कॉल राइटर्स की तेजी से भी बहुत बढ़ा है, लेकिन अब ये मेरे को हिसाब से लॉन्गर टर्म ट्रेंड में बुलिश है। यू कैन बाय इट इवन ऑन मंडे। ओके सर। सर इसमें मैं इशिमोकू चार्ट भी देख रहा था हाँ, डेली में, हाँ, एंड उसमें तो ब्रेक ही किया कल ही, मतलब लास्ट सेशन ही ब्रेक किया इसको। यस डेली में देख रहा था सर मैं। यस यस, दिल्ली में ना, दिल्ली में तो टेंकन के ऊपर ही है। हाँ वो कल मतलब एक दो दिन पहले ही लास्ट सेशन में ही वो ब्रेक किया उसको प्रॉपर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कब से देखिए टेंकन के ऊपर ही जा रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ओके मैं लास्ट ही देखा, सॉरी सर। हाँ हाँ, और टेंकन देखिए कि जून को क्रॉसओवर किया है, रेड लाइन को क्रॉसओवर किया ऊपर में। उसके बाद देखिए ट्रेंड इतना ऊपर ही ऊपर है। यस यस, है ना, कन्विंसिंगली ऊपर है, अभी ट्रेंड ऊपर चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत आरएसआई अगर देखेंगे तो ओवरबॉट लगेगा, लेकिन अभी भी ट्रेंड ओवरबॉट रह सकता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम। माइनर करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन फिर भी इट्स बाय ऑन टिप्स। कॉपर कर्व भी सेलिंग की लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत अभी, मतलब इट्स लॉन्ग टर्म, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस इट सेल इज इन द बाय अप ट्रेंड, राइट? ओके सर।